Okay, from the unit of consideration in our last session, we have started the question: a stranger to contract cannot sue and cannot be sued. This rule is subject to 7 exceptions. In that 7 exceptional circumstances, even a stranger to contract can sue and can be sued. Out of that, 2 exceptions we discussed. Okay, number 1 exception we discussed was trust. Number 2 exception we discussed is the family settlement. Now, the third exception we are going to see out of this particular point, and this third exception we are going to see is the marriage contract or a settlement is the third exception we are going to see. And the example already we have discussed. Okay, in a family settlement between 2 brothers, they promised in that agreement to each other that when daughter, that is the sister's marriage will be fixed, they will pay a certain amount for the marriage. And afterward they refuse to that particular amount to be paid to the sister when her marriage get fixed. The sister, even though not a party to contract, but she can file the suit against the brother for the recovery of amount. Okay, so third exception is in case of a family settlement, the same point continues in case of certain marriage contract or agreement. A provision may be made for the benefit of a person. He may file the suit though he is not a party to a agreement. Okay, for example, Mr. X wife deserted him for ill-treating her. X की wife, Mr. X wife deserted him for ill-treating her. Okay, X की wife husband को छोड़ देती है. क्यों? Deserted मतलब उसको छोड़ के चली जाती है. क्यों? क्योंकि वो उसको ill-treat कर रहा था. हाँ, मतलब उसको cruel treatment दे रहा था. Mr. X promised his wife's father, Mr. Puri, that he will treat her property or else pay her monthly allowance. Okay, ध्यान में आ रहा है आपको? Mr. X promised his wife's father. Mr. X क्या करता है यहाँ पे? किसकी? मिस्टर एक्स की वाइफ मिस्टर एक्स को छोड़ के गई है. अब ये मिस्टर एक्स जो है ना, वो वाइफ के फादर मिस्टर पुरी है, उनको प्रॉमिस करता है. ओके, मिस्टर एक्स प्रॉमिस्ड हिज वाइफ्स फादर पुरी दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपर्टी और एल्स पे हर मंथली अलाउंस. ओके, उसके प्रॉपर्टी को संभालेगा या फिर उसको कुछ मंथली अलाउंस वहां पे दे देगा. हाँ, बट शी वाज अगेन इल ट्रीटेड बाय द हस्बैंड. बट फादर को प्रॉमिस करने के बाद में भी वो सुधरता नहीं है हस्बैंड, और वो स्टिल वाइफ को क्या कर रहा है? इल ट्रीट कर रहा है वहां पे. हियर शी हैज ऑल राइट टू sue मिस्टर एक्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर पुरी इवन दो शी वाज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअली मैं उसको कुछ मंथली अमाउंट दे दूंगा. ये प्रॉमिस किसने किसको किया? बोलो, ये प्रॉमिस एक्स के एक्स ने एक्स के वाइफ के फादर को किया है. तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? बोलो, एक्स के बीच में और वाइफ के फादर के बीच में. हाँ, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है हस्बैंड, मिस्टर एक्स ब्रीच कर रहा है. तो क्वेश्चन मार्क क्या राइज होता है? बोलो यहाँ पे कि क्या भले ही कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड और फादर के बीच में है, स्टिल वो वाइफ एक्शन ले सकती है क्या? तो हाँ, क्योंकि वह उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिशियरी है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिशियल अरेंजमेंट की है, वो किसके लिए की? बोलो, उस वाइफ के लिए की गई है वहां पे. हाँ, तो देखो क्या हो गया वहां पे. शी हैज ऑल द राइट टू sue मिस्टर एक्स against the contract made between Mr. X and Mr. Puri even though she was a stranger to contract. भले ही वो stranger to contract थी, but still उसको right of action वहां पे था. हाँ, now देखो, in case of assignment of a contract, when benefit under a contract has assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. वहां पे हाँ, जब कोई पर्टिकुलर मेरी जिम्मेदारी मैं किसी और को क्या कर रहे हो वहां पे ट्रांसफर कर रही हो, बेनिफिट हम लोग किसी और को क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं. तो जिसको असाइन कर रहे हैं ना, वो भी एक्शन ले सकता है भले ही वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है. हाँ, बट वहां पे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो असाइनमेंट है वो पर्सनल स्किल नहीं होना चाहिए. ओके, जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल. सपोज ना, देखो क्या हो गया. आई हैव टेकन सम लोन फ्रॉम वन बैंक नोन एज एक्स. मैंने क्या किया? बोलो, कुछ एक्स बैंक से मैंने लोन लिया. हाँ, ध्यान में रहा, मैंने एक्स बैंक से लोन लिया. हाँ, अब ना किसी वजह से ये एक्स बैंक क्या हो रही है? बंद पड़ रही है. हाँ, तो इस एक्स बैंक मर्ज हो गई है. इस एक्स बैंक ने अपना जो भी कुछ पूरा ट्रांजैक्शंस थे वो सारे असाइन कर दे किसको? वाई बैंक को. हाँ, देन मैं एक्स बैंक या तो वाई बैंक के साथ मर्ज हो रही है. एक्स बैंक अपने सारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो किसको असाइन कर रही है? वाई बैंक को असाइन कर रही है. हाँ, तो वाई कौन हो गया? बोलो, असाइन ही हो गया. वाई कौन हो गया? ध्यान में गया आपको? वाई बैंक कौन हो गया? असाइन ही हो गया.
तो अब क्वेश्चन मार्क क्या है, देखो एक्स बैंक से लोन किसने लिया, मैंने, पी ने लिया, राइट। तो ये जो लोन ट्रांजैक्शन है ये किसके बीच में था, एक्स बैंक और पी के बीच में। हाँ, तो वाई बैंक तो एक्चुअली स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, वाई बैंक तो कौन है वहां पे, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब एक्स बैंक अपने सारे बेनिफिट्स वाई बैंक को असाइन करती है, तो ये वाई बैंक भले ही स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या कर सकती है, यहाँ पे एक्शन ले सकती है, पी से पैसे क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है। हाँ हाँ, बट याद रखो मुझे एक बुक लिखना था, पी को एक बुक लिखना था। हाँ, और वो मुझे पी को बुक किसके लिए लिखना था, बोलो एक्स के लिए लिखना था। हाँ, ध्यान है आपको। और अब पी ने क्या किया है, अपना ये जो बुक लिखने का काम है ना, ये क्यू को असाइन कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे चलेगा क्या, नहीं, ऑथर कौन है, पी है। तो पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, वैसे किसी और को असाइन हो सकता है क्या वहां पे, नहीं, किसी और को असाइन नहीं हो सकता ऐसे। सो पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं हो सकता, बट बाकी अदरवाइज केसेस में व्हेन द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज असाइन्ड, the assignee can enforce the contract. हाँ, even though he is a stranger to contract, भले ही वो stranger to contract है, still वो contract में जो stranger है, assignee है, वो क्या कर सकता है, contract को enforce वहां पे कर सकता है। हाँ, now next point देखो, acknowledgement और estoppel is another point we are going to discuss. Next point क्या discuss करें बोलो हम लोग, acknowledgement या estoppel. Okay, अब ना आपको लॉ में पहली बार ये एस्टोपेल का प्रिंसिपल आया है। ओके, मैं आपको पहले एस्टोपेल का प्रिंसिपल समझाती हूँ एंड देन हम लोग इस पॉइंट के अंदर जाते हैं। हाँ, हमेशा के लिए दिमाग के अंदर डाल के रखो कि एस्टोपेल मतलब क्या आता है। देखो, आपके कहने पे किसी और ने कुछ एक्ट किया है, आपके कहने पे किसी और ने कुछ जिम्मेदारी खुद पे ली है। हाँ, तो बाद में आप, हाँ, आपके वर्ड से क्या नहीं हो सकते, वहां पे पीछे नहीं जा सकते। ओके, when one particular person has undertaken some responsibility, on the words given by you, you are stopped from denying that particular words. बाद में मैंने कब बोला था मुझे पता ही नहीं, I don't know, ऐसे particular words आप क्या नहीं कर सकते, वहां पे यूज नहीं कर सकते, that is considered as a estoppel. हाँ, अब यहाँ पे estoppel या acknowledgement क्या आ गए, देखो I'll give you one particular example for this point. हाँ, देखो वन जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, क्या हो रहा है, देखो एक व्यक्ति है, मिस्टर एल यहाँ पे दिया। हाँ, इफ एल गिव्स एम ₹20,000 टू बी गिवन टू द एन। हाँ, एल ने एम को 20,000 रुपए दिए और वो पैसे किसको देने, देखो एन को देने। देन एल ने एम को कुछ पैसे दिए और वो पैसे किसको देने, बोलो एन को वो पैसे देने। हाँ, एंड एम इन्फॉर्म एन दैट ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम। एम क्या कर देता है, उसको इन्फॉर्म कर देता है कि वो उसके पास में एल ने दिए हुए पैसे हैं। हाँ, और बाद में एम रिफ्यूज करता है टू पे दैट पर्टिकुलर मनी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस भले ही एम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, स्टिल एम के अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है एंड विल एंटाइटल टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर दैट इज एम। मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में एग्जांपल आपको क्या करती है यहाँ पे समझाती हूँ। ओके, विल जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इन आवर ओन लैंग्वेज। हाँ, देखो क्या गया वहां पे, एक अमित है अगेन हमारा। हाँ, ये अमित कुछ पैसे उसने सुमित से लिए हुए थे। अमित ने कुछ पैसे किससे लिए हुए थे, देखो सुमित से लिए हुए थे। हाँ, और ये 20,000 ही ले लेते हैं अमाउंट हम। हाँ, अमित ने 20,000 रुपए किससे लिए थे, सुमित से लिए थे। तो अमित को वो 20,000 रुपए किसको देने थे, सुमित को देने थे। हाँ, और सुमित अमित के घर से रहता है 20 किलोमीटर दूर। क्या हो गया, देखो इन बिटवीन दैट वन पर्सन नोन एज मोहन, एक व्यक्ति मोहन नाम का सुमित के घर के एरिया में जा रहा था। एक व्यक्ति मोहन नाम का सुमित के घर के एरिया में जा रहा था। देन मैं आपको, हाँ, तो ये जो अमित है ना, ये मोहन को बोलता है कि आप सुमित के घर के एरिया में जा रहे हो ना, तो इतने 20,000 रुपए आप किसको दे देना, वहां पे सुमित को दे देना। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में समझ के लो, अमित और सुमित के बीच में। हाँ, अमित कौन है वहां पे, डेटर एक सुमित क्रेडिटर है, अमित को वो 20,000 रुपए सुमित को देने, बट उसका घर उसके घर से दूर है, अमित का घर सुमित के घर से दूर है और मोहन उसी एरिया में जा रहा है, इसीलिए अमित मोहन को बोल रहे हैं कि भाई आप इतने पैसे सुमित को क्या करना, वहां पे दे देना। हाँ, देखो मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, ये मोहन पैसे अपने पास ले लेता है। हाँ, और ये पैसे लेके मोहन क्या करता है, भाग जाता है।
ये पैसे लेके मोहन क्या करता है, भाग जाता है, मोहन रन अवे, हाँ मोहन गया भाग के। तो पहला क्वेश्चन मार्क आता है कि इस सर्कमस्टेंसेस में वो 20,000 रुपए रिकवर करने के लिए सुमित मोहन पे सूट फाइल कर सकता है क्या? इस सर्कमस्टेंसेस में अपने पैसे रिकवर करने के लिए सुमित मोहन पे सूट फाइल कर सकता है क्या? हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। क्यों नो बोलो? क्योंकि अभी ये जो मोहन है ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सूड में जाएगा। आया ध्यान में आपको? हाँ, बट इसी सर्कमस्टेंस को मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। मोहन ने क्या किया, मोहन घर गया, हाँ, और घर जाने के बाद मोहन सुमित को फोन करके बोलता है कि सुमित आपके पैसे मेरे पास में है जो अमित ने मेरे पास दिए हुए हैं, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। हाँ, कौन? मोहन। किसको? सुमित को, कि सुमित आपके पैसे मेरे पास में है जो मोहन ने सॉरी मोहन सुमित को एक्नॉलेजमेंट देता है कि सुमित आपके पैसे मेरे पास में है जो अमित ने मेरे पास दिए और मैं आपको कल आके दे देता हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा टाइम नहीं है वहां पे। हाँ, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मोहन के माइंड में थोड़ा सा क्या हो जाता है, वहां पे खोट आ जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये मोहन पैसे लेके भाग जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क है कि क्या अब सुमित मोहन पे सूट फाइल कर सकता है? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि मोहन ने एक्नॉलेजमेंट दिया है ना। नाउ ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मोहन ने सुमित को क्या दिया बोलो, वहां पे एक्नॉलेजमेंट दिया है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अब सुमित को वो पैसे मोहन को वापस सॉरी मोहन को वो पैसे सुमित को वापस करने ही पड़ेंगे और सुमित मोहन पे सूट फाइल कर सकता है, इवन दो ये मोहन कौन है बोलो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे। हाँ, सो एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल इज वन मोर पॉइंट इन विच इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, वहां पे सूट फाइल कर सकता है। दोनों सर्कमस्टेंसेस ध्यान में आ गए क्या? देखो, पहले सर्कमस्टेंसेस में जब वो मोहन एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं दे रहा है और अगर ऐसे ही भाग के गया तो फिर सुमित मोहन पे एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन जब मोहन एक्नॉलेजमेंट देता है कि सुमित आपके पैसे मेरे पास है जो अमित ने दिया और मैं कल आपको लाके देता और नहीं देता और भाग जाता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस मोहन पे सुमित क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। हाँ, नाउ द नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द रूल स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल द सूट इज in case of a covenant running with the land. Now covenant मतलब agreement, पहले mention करके रखो। हाँ, in case of the covenant running with the land। हाँ, देखो अब covenant running with the land मतलब क्या आ जाएगा, देखो हाँ समझो। अगेन हम लोग क्या करते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्टी पॉइंट, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा। हाँ, सपोज क्या है, देखो यहाँ पे ये रोड है। हाँ, इस रोड को कनेक्टेड इमीडिएटली ए की लैंड है। हाँ, इस रोड को कनेक्टेड इमीडिएटली ए की लैंड है। हाँ, इस ए के लैंड के बैक साइड में बी की लैंड है। ए के लैंड के बैक साइड में किसकी लैंड है, वहां पे बी की लैंड है। हाँ, डन में रहा आपको? अब सालों से, हाँ फ्रॉम इयर्स टू इयर्स, इस बी के लैंड में जाने के लिए कोई रोड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे किसी और का खेत है, यहाँ पे किसी और का खेत है, पीछे भी खेत है। हाँ, पुराने जमाने में प्रॉपर्टी को इतना कुछ वैल्यू नहीं रहता था, तो लोग ऐसे इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते थे। बी के जगह में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो फ्रॉम इयर्स टू इयर्स ए के लैंड के इस कॉर्नर से, ए का लैंड का ये जो कॉर्नर है, हाँ, इससे राइट ऑफ वे किसको दिया जा रहा था, देखो इस बी के लैंड में जाने के लिए दिया जा रहा था। हाँ, तो इस ए और बी के बीच में कॉवेनेंट है, एग्रीमेंट है। हाँ, ए और बी के बीच में क्या एग्रीमेंट है बोलो, कि ए बी को बी के प्रॉपर्टी में जाने के लिए राइट ऑफ वे क्या करेगा, वहां पे देगा रास्ता। हाँ, वे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये कॉवेनेंट बी और ए के बीच में है वहां पे, ध्यान में आ गया? हाँ, अब क्या हो जाता है पता है, ए जो है, ए अपनी लैंड डी को बेचता है और डी को इसके बारे में पता है कि ए के लैंड से बी को जाने आने के लिए रास्ता क्या करना है, देना है। ऐसा कॉवेनेंट ए और बी के बीच में है। हाँ, अब ध्यान में आ रहा है आपको? ए क्या कर रहा है, अपनी लैंड क्या करता है, डी को बेचता है, और डी जो है ना वो बी को मना कर देता है जाने आने से और बोलता है कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जो एग्रीमेंट था आपका ए के साथ में था और मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, आई एम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मुझ पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। आई एम नॉट बाउंड टू गिव दिस पर्टिकुलर राइट ऑफ अ वे टू यू। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क क्या था देखो यहाँ पे, कि क्या ये डी बाउंड है
बी को ये रास्ता आने जाने के लिए देने के लिए, तो आंसर होगा कि यस, इवन दो डी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, बी डी पे क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। हाँ, तो जब आप कोई लैंड सेल करते हो, हाँ, और कोई भी वो लैंड परचेस करता है जिसपे कोई कॉवेनेंट है, कोई एग्रीमेंट है, जिसपे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ड्यूटी है उस लैंड पे, तो वो कॉवेनेंट के साथ में वो ड्यूटी भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, और वो जो ट्रांसफर ही होगा वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भले ही होगा, स्टिल उस पर एक्शन लिया जा सकता है वहां पे। हाँ, देखो, इन केस ऑफ अ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, द पर्सन हु परचेज द लैंड विद द नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय द ड्यूटी। डी ने लैंड परचेस की थी विद द नोटिस ना, कि इस पर्टिकुलर लैंड पे ड्यूटी है ए पे, कि ये ए को बी को वहां से जाने आने का रास्ता देना है वहां पे। द कॉवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड, ये जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में है, मे बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। हाँ, तो सेलर का जो अगला पर्टिकुलर कोई आएगा उस पे भी वो एनफोर्स किया जा सकता है। सो कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड इज द सिंपलेस्ट पॉइंट। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको एग्जाम्पल फिक्स दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिमाग में रखोगे तो ये पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में क्या रहेगा, वहां पे फिट रहेगा। हाँ, देखो, रीड आउट करते हैं। इन केस ऑफ अ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, द पर्सन हु परचेसेस द लैंड विद द नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड विद सर्टेन ड्यूटी अफेक्टिंग द लैंड, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. Example देखो, हाँ, one owner of the land having two land adjacent to each other, एक लैंड का ओनर है, दो लैंड एक दूसरे को अटैच करके उसी एक ही ओनर के। हाँ, one was agricultural land, he sold the other land containing a condition that it can never be used for an industrial purpose, हाँ, so as to protect the other agricultural land from pollution। हाँ, उसने अपनी एक लैंड किसी को बेच दी, लेकिन जिसको बेची उसको एग्रीमेंट किया उसने कि इस लैंड को आपको कभी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि साइड वाली लैंड क्या थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी ना, और खेती और इंडस्ट्री साथ में रहेंगे तो ऑफकोर्स खेती वाली लैंड खराब हो जाती है। हाँ, सच अ कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड, सो हुसएवर इज द सक्सेसर ऑफ अ लैंड हैज टू बी अवॉइड बाय इट। हाँ, और उसमें क्लियर लिखा है कि ये लैंड वो, हाँ, प्रेजेंट परचेसर किसी और को भी बेचता है तो किसी और पे भी वो कंडीशन बाइंडिंग रहेगी वहां पे। हाँ, सच आर कॉल्ड एज अ रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट, एंड वो लैंड जो भी कोई खरीदेगा, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, सब पे वो कंडीशन बाइंडिंग रहेगी कि वो लैंड पे आपको इंडस्ट्रियल यूज नहीं करना है। हाँ, सो अगर किसी लैंड पे कोई कंडीशन कॉवेनेंट बना है और वो कॉवेनेंट सब्जेक्ट टू सम ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी उस लैंड के जो भी नेक्स्ट सक्सेसर परचेसर होंगे सब पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा। हाँ, एंड लास्ट एग्जांपल एकदम इजी है, लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एन एजेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने किया तो भी उसका मालिक भी उसको एनफोर्स कर सकता है, उसका प्रिंसिपल उसको एनफोर्स कर सकता है। सिंपल, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट whereas the agent has acted within the scope of authority and in the name of principal. Only condition is that जो भी एजेंट ने किया है वो उसके मालिक ने, उसके प्रिंसिपल ने उसको जितनी अथॉरिटी दी थी उतने अथॉरिटी के विदिन लिमिटेशन ही किया है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया वो प्रिंसिपल के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वहां पे एनफोर्स हो सकता है। इवन दो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है फिर भी वो प्रिंसिपल उसको क्या कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है। ओके, सो हियर वी फिनिश्ड आउट अ क्वेश्चन, a stranger to contract cannot sue. This is a general rule. This is known as a doctrine of a privity of contract. As a general rule, if the contract is between A and B, C cannot file the suit on that particular contract, and we cannot file the suit against the C. But this rule is subject to some exceptions, like in case of a trust, beneficiary can enforce the contract between settler and trustee. In case of a family settlement, family member in whose benefit there is some term in the contract can enforce the contract even though he is not a party to contract. In case of a marriage contracts also, a person who is the beneficiary of a contract can enforce the contract. In case of assignment of contracts, assignee can enforce a contract. Acknowledgement और estoppel एक बार दे दिया तो बाद में आप contract मना नहीं कर सकते हो. And in case of a covenant running with the land, any land which is subject to some duties, okay, that duty will be also transferable on the person who is purchasing that particular land, and contract which are entered by an agent can be enforced by the principal. Okay, so a stranger to contract cannot sue, but this rule is subject to these 7 exceptions जो हमने अभी क्या किए यहाँ पे डिस्कस किए। हाँ,